Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Good morning dear students, welcome to EVS class. Today we are going to start with chapter number 3 and the name of this chapter is water. Students, do you know water is one of the most important natural resource found on earth. All of us need water to live. We need water for drinking, cooking, bathing, cleaning and for many other day-to-day activities. We cannot live without water. Even plants, birds and animals also need water to live. It is very essential for our life. So in this chapter, we are going to understand what are the various sources of water, what is underground water, what are the various ways in which we can obtain the underground water, as well as what are the main sources of water. So let's get started. You already know that rain is the purest source of natural water. So students, what are the various sources of water? There are number of sources of natural water which includes rain, seas, oceans, rivers, streams, lakes and ponds. So out of these natural resources of water, which one is the purest source of water? Rain is the purest source of water. इस अर्थ पर वाटर के जितने भी सोर्स हैं उसमें से वाटर का सबसे प्योरेस्ट सोर्स कौन सा है? रेन. When it rains, some of the rainwater goes into the soil. This water is called underground water. Now, what is underground water? Underground water क्या है? When it rains, not all the water flows into rivers and oceans. जब बारिश होती है तो बारिश का सारा पानी rivers या oceans में नहीं जाता. While some of it is absorbed by the soil. बल्कि कुछ पानी सॉइल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जिसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. अंडरग्राउंड वाटर हमें दिखाई नहीं देता पर यह ज़मीन के अंदर हर जगह पाया जाता है एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. और ग्राउंड वाटर जो है वो अर्थ पर फ्रेश वाटर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. वी डिग वेल्स एंड सेट अप ट्यूब वेल्स टू गेट इट. ग्राउंड वाटर को ज़मीन से निकालने के लिए वेल्स, ट्यूब वेल्स और स्टेप वेल्स बनाए जाते हैं. वी ऑल्सो यूज़ हैंड पम्प्स टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हैंड पम्प्स का यूज़ भी किया जाता है. नेक्स्ट इज़ गेटिंग अंडरग्राउंड वाटर. यहाँ हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ग्राउंड वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच वी कैन ऑब्टेन दिस ग्राउंड वाटर. So first is well, second is Bowli, also called as step well, and third one is hand pump. So let's discuss one by one. First one is well. You might be familiar with well. आप सबने well देखा होगा, किसी ने बुक्स में देखा होगा, किसी ने टीवी में देखा होगा और किसी ने रियल में भी देखा होगा. Now the question is well होता क्या है और ये कैसे बनाया जाता है? A well is a deep hole dug in the ground where underground water is easily available. Well बनाने के लिए ज़मीन में बहुत ही गहरा गड्ढा किया जाता है और ये वहाँ बनवाया जाता है जहाँ अंडरग्राउंड वाटर easily available हो. So well क्या होता है? Well एक deep hole होता है जिसके द्वारा ज़मीन से पानी निकाला जाता है. Water is taken out from the well with the help of a pulley. वेल में जो वाटर होता है उसे पुली की हेल्प से निकाला जाता है. अ पुली इज़ अ व्हील विद अ ग्रूव्ड आउटर रिम. पुली एक तरह का व्हील होता है जिसके ऊपर रस्सी बांधी जाती है. यू कैन सी हेयर दिस इज़ अ पुली. अ बकेट इज़ टाइड टू द एंड ऑफ अ रोप एंड द रोप इज़ फिटेड इन द ग्रूव ऑफ द व्हील. रस्सी को पुली पर बांधा जाता है और उसके एक साइड पर बकेट को बांधा जाता है. As the rope is released, the bucket goes down into the soil. जब रस्सी को छोड़ दिया जाता है तो बकेट पानी के अंदर चली जाती है. When the bucket gets filled with water, it is taken out of the wheel by pulling the rope.
पानी के अंदर जाने के बाद जब बकेट पानी से भर जाती है तो रस्सी को खींचकर बकेट को बाहर निकाल लिया जाता है। Most of the villages in our ground have wells to draw underground water. हमारी कंट्री में ज़्यादातर विलेजेस में अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए वेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। Next is बाउली, also called as step well. In the past, rulers made water tanks. पहले के टाइम में जो रूलर्स होते थे मीन्स जो राजा महाराजा होते थे वो वाटर टैंक्स बनवाते थे। अ टैंक दैट हैज़ स्टेप्स ऑन ऑल इट्स साइड सो दैट पीपल कैन रीच द वाटर इज कॉल्ड अ स्टेप वेल। ये जो वाटर टैंक्स होते थे इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनवाई जाती थी जिससे लोगों को आसानी से पानी मिल सके। इन वेल्स के आसपास सीढ़ियाँ बनवाई जाती थी जिस कारण इन्हें स्टेप वेल कहा जाता है। Most of the Baulis today have dried up, but they remind us of our rich past. आजकल ज़्यादातर बाउलीज जो हैं वो सूख चुकी हैं, लेकिन यह हमें पुराने समय की याद दिलाती हैं। In the past, a bauli was not just a source of water; it was also a place where community activities and religious ceremonies were held. पहले के टाइम में जो बाउलीज बनाई जाती थी वो सिर्फ वाटर का सोर्स ही नहीं होती थी बल्कि उसमें कम्युनिटी एक्टिविटीज़ और रिलीजियस सेरेमनीज़ भी की जाती थी। जैसे लोग इसमें नहाते थे, स्विमिंग करते थे, यहाँ लोग मीटिंग्स करते थे और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते थे। नेक्स्ट इज हैंड पम्प। Deep bores or holes are dug into the earth to get underground water. Water is drawn out by using a hand pump. हैंडपम्प बनवाने के लिए ज़मीन में बहुत ही गहरा गड्ढा किया जाता है और ज़मीन का जो पानी होता है वो हैंडपम्प की हेल्प से बाहर निकाला जाता है। We have to move the handle of the hand pump up and down continuously to draw out water. Look at this. This is the handle of the hand pump. How it works? You have to pull it up and down. You have to move it continuously in order to draw out the water. यह हैंडपम्प का हैंडल है। ज़मीन में पानी निकालने के लिए इसे कॉन्टीन्यूसली ऊपर नीचे करना पड़ता है जिसके बाद वाटर बाहर आता है। सो दीज आर द वेरियस वेज इन विच वी कैन ऑब्टेन द अंडरग्राउंड वाटर। फर्स्ट इज वेल, सेकेंड वन इज स्टेप वेल एंड थर्ड वन इज हैंडपम्प। That's all for today. Thank you. God bless you all. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।